الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلی جمعہ میں نے عرض کیا تھا نکاح اور زنا یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ان میں سے ایک کو وزن کیا جائے گا تو دوسرا ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرے کو وزن کیا جائے گا تو پہلا ہلکا ہو جائے گا. شریعت مطہرہ نے یہ بیلنس معاشرے کے ہاتھ میں دے دیا ہے، سوسائٹی اور سماج کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور نکاح باوجود انسانی ضرورت ہونے کے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر زور دیا ہے. جیسے کہ پچھلی جمعہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، کھانا پینا، مکان بنانا، کپڑوں کا استعمال کرنا، سواریوں کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں انسانی ضروریات میں سے ہیں. لیکن شریعت مطہرہ ان ضروریات پر ترغیب نہیں دیتی کہ ہر مسلمان کا ایک اپنا مکان ہو، 10 جوڑے کپڑے ہوں، 1-2 سواریاں ہوں. کہیں ایسی روایت نہیں ملتی، بلکہ یہ معاملات میں مسلمان جتنا کفایت شعاری کرے گا، قناعت کرے گا، اس مسلمان کی تعریف کی گئی ہے. انہی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت تھی نکاح. نکاح کے تعلق سے واضح احکامات کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، سبب اس کا یہ ہے کہ اسے آسان بنا دیا جائے، اسے ہلکا کر دیا جائے، اور یہ قابل ہضم ہو تو زنا مشکل ہو جائے گا. اگر اسے مسئلہ بنا دیا جائے گا اور یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ سماج کے لیے ناسور بن جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا، اور زنا جب آسان ہوگا تو معاشرے کے اندر بدامنی ہوگی، کسی کا نسب نہیں ملے گا کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اور زنا کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو عذابات نازل ہونے ہوں گے وہ عذابات نازل ہو کر ہی رہیں گے. طاعون کی وبا ہے، اموات کی کثرت ہے، نئی نئی بیماریوں کا پیدا ہو جانا ہے، قحط کا پیدا ہو جانا ہے، بارش کا کم ہو جانا ہے، یہ سب زنا کے اثرات ہیں. تو اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، نکاح کی اہمیت بیان فرمائی. اور روایت میں آتا ہے نہا عن التبتل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
الگ تھلگ رہنے سے، نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُمْ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے تمہارے سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کی آل اولاد ہم نے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں آیا اور کوئی رسول ایسا نہیں آیا جو شادی کے بغیر زندگی گزار کر چلا گیا ہو، اولاد کے بغیر وہ زندگی گزار کر چلا گیا ہو۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو ابدی کلام ہے فرمایا تاکہ امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے کہ یہ انفرادی زندگی، شادی سے دور والی زندگی، یہ کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول دنیا کے اندر اپنا گھر بسایا ہے، جس کی بیوی رہی ہے اور جن کے آل اولاد دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سنتیں ساری نبیوں کی سنتیں ہیں، اس میں سے ایک کے بارے میں ذرا روایتوں میں اختلاف ہے۔ پہلی سنت جس کا تذکرہ ہے حیا، کہ حیا، شرم، پاکیزگی، عفت، عصمت یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حیا سے خالی اتارا گیا ہو، نہیں، بلکہ حیا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ یہ پہلی سنت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں داڑھی کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے، اور بعض روایتوں میں حیا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ممکن ہو یہ دونوں چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہوں، اور جس صحابی نے نبی سے جو بات سنی وہ اپنے شاگردوں کو بیان کر دی۔ حیا بھی تمام نبیوں کی سنت ہے اور داڑھی رکھنا بھی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عطر کا استعمال کرنا اور مسواک کا استعمال کرنا یہ تمام نبیوں کی اور تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ النکاح، یہ نکاح بھی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ وجہ ترغیبات بیان کرنے کی یہ ہے کہ امت محمدیہ سنت سمجھ کر، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کر اور تمام رسولوں کا طریقہ سمجھ کر، یہ بدعت سے دور رہ کر، خرافات سے دور رہ کر، فضول خرچی سے دور رہ کر، شیطانیت سے دور رہ کر یہ جو ہے آسانی کے ساتھ یہ سنت پر عمل کرے۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کو بیان کیا ہے۔ کلام پاک کے اندر مستقل آیتیں نکاح کی ترغیب کے سلسلے میں آئی ہیں، جن کا تذکرہ پچھلی جمعات کے اندر ہو چکا ہے۔ حضرات، نکاح کو مشکل بنانے کے اندر جو سب سے آج کا اہم مسئلہ ہے، وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جہیز کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کافی غریب لڑکیاں پریشان ہو چکی ہیں۔ جس گھر کے اندر 2-4 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑکیوں کے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، بغیر شادی کے گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے اور شادی کر بھی نہیں سکتے۔ فرنٹ لائن انگریزی کا میگزین ہے، 1992 کا پرچہ ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمل ناڈو کے اندر ایک گوبر اٹھانے والا مزدور بھی لڑکی والوں سے 10 تولہ سونا جہیز کے اندر طلب کرتا ہے۔ یہ تو گوبر اٹھانے والے کی بات ہے، اور جو میکینک ہو اور کسی کارخانے کا ملازم ہو اور جس کے پاس کوئی ڈگری ہو اور جس کے پاس جتنی زیادہ تعلیمی قابلیت ہے، وہ اس بازار کے اندر اتنے اونچے بول کے اندر وہ فروخت ہوتا ہے اور اتنے اونچے بول کے اندر وہ بک جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی حالت آ چکی ہے، اور کچھ مسلمان اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جہیز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، اسی وجہ سے آج لڑکی کے ماں باپ اپنی لڑکیوں کے لیے جہیز دیا کرتے ہیں۔ یہ جہیز اتنا ناسور بن گیا ہے، اتنا عذاب بن گیا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش مستقل آج منہ کو کالا کرنے والی چیز بن گئی ہے۔ لڑکوں کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور جشن منایا جاتا ہے، لڑکی کے پیدائش پر چہرہ آزردہ ہو جاتا ہے اور چہرے سے ناراضگی ٹپک جاتی ہے۔ 10-20 دن گزر جاتے ہیں،
चिल्ला हो जाता है, लड़की का बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरे घर में एक लड़की जन्म ली है, वो कहने तैयार नहीं होता। एक मुसीबत वो समझता है। वजह उसकी ये है कि समाज ने इसे एक मुसीबत की शक्ल दे दी है, एक अजाब की शक्ल दे दी है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये हालात थे कि लड़की का पैदा होना एक अजाब की शक्ल था, एक मुसीबत की शक्ल था। आज जमाना तरक्की पर आने के बावजूद जदीद जाहिलियत के अंदर मुब्तला हो चुका है। पिछले जमाने में लड़की पैदा होने के बाद वो दरिंदा सिफत बाप गड्ढा खोद कर खुद अपनी लड़की को इस वजह से गड्ढे के अंदर उतार देता था कि उसे जहेज देना पड़ता था, उसे घोड़े झोड़े की रकम देना पड़ता था, उसे दामाद को कबूल करना पड़ता था। आज अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के जरिए से हमल को मालूम करके, लड़की का हमल मालूम करके इसे इस्कात किया जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त आयत शरीफा को नाजिल फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कि ये जिंदा दरगौर की हुई लड़की से अल्लाह तबारक तआला मैदान महशर में सवाल करेंगे कि तेरे बाप ने किस जुर्म में गड्ढा खोद कर तेरे बाप ने तुझे गड्ढे के अंदर जिंदा दफन कर दिया। इसी तरीके से आज वो माँ बाप जो अपने बीवियों के हमल से लड़की का जनीन मालूम करके हमल को साकित करा रहे हैं, मैदान महशर में इन माँ बाप से के सामने उस हमल को जिंदा किया जाएगा और उसे पूछा जाएगा किस जुर्म के अंदर तेरी माँ ने इसकात हमल कराया था और तेरे बाप ने पैसे दिए थे। ये तमाम सवालात मैदान महशर के अंदर किए जाएंगे और आज ये हो रहे हैं। हालांकि इस्लाम और शरीयत मुताहरा लड़की को एक नेमत करार देती है और अजीम दौलत करार देती है। हदीसों में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लड़कियों की परवरिश करता है और भले तरीके से परवरिश करता है, स्कार्ट पहनाकर और बुर्का से आरी करके नंगा बाजारों में घुमा कर नहीं, बल्कि शरीयत मुताहरा के तरीके पर और इस्लाम के तौर तरीकों पर, तहजीब और तमद्दुन के तौर तरीकों पर परवरिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व हुवा फिल जन्नती कहिया कहातैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं और उन लड़कियों का बाप जन्नत में इस तरीके से होंगे जिस तरीके से ये दो उंगलियां हैं, यानी इन दो उंगलियों के दरमियान कोई फासिला नहीं है और दो उंगलियों के दरमियान कोई हदबंदी नहीं है। इसी तरीके से जन्नत में मैं और वो लड़कियों के बाप एक साथ होंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक तआला ने लड़कियों की पैदाइश को अपनी खिलकत का अजीम शाहकार अतिया बताया है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तबारक तआला के लिए जमीनों की बादशाहत है, आसमानों की बादशाहत है। अल्लाह अवाम की अदालत के अंदर एक मुकदमे को साबित कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए जमीनों और आसमानों की बादशाहत है। इस बादशाहत की सबूत में अल्लाह तबारक तआला जो दलील दे रहे हैं वो दलील ये है, यहबु यखलुकु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे लड़कियां देते हैं। गौर करो कुरान शरीफ की इस आयत मुबारका पर अल्लाह तबारक तआला अपने जमीन और आसमान की बादशाहत के सबूत में अपनी तखलीक और अपने और मखलूक के पैदा करने को बतौर दलील के पेश कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले ये कह रहे हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे हम लड़कियां देते हैं, व यहबु लिमन ज़ुकूर, और जिसे चाहे हम लड़के देते हैं। लड़कियों का तज़किरा अल्लाह तबारक तआला ने कायनात की तख्लीक की दलील बयान करते हुए पहले बयान फरमाया कि लड़कियां हम जिसे चाहे देते हैं, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहे हम लड़के देते हैं। फिर आगे फरमाया कि हम जिसे चाहे लड़के और लड़कियां मिलाकर दे देते हैं। ये जो खुदा की रहमत है और खुदा की तख्लीक का शाहकार नमूना है। आज उम्मत मुस्लिमा गैरों की बात छोड़ो, यहूदों की बात, नसारा की बात, मुशरिकों की बात, ईसाइयों की बात और गैरुल्लाह की परस्तिश करने वालों की बात छोड़ो, वो उम्मत जिसका काबा एक है, जिसका रसूल एक है, जिसका अल्लाह एक है, आज जालिम बन गया है और दूसरों के खून पीने पर उतर गया है, जिंदा कातिल बन चुका है। जिसके घर 2-3 लड़कियां हों और 2-4 लड़के हों, वो अपने पेट की औलाद लड़कियां रखते हुए जब लड़कों का नंबर आता है खुले
खुले आम शद्दाद बन जाता है, फिरौन बन जाता है, कारून बन जाता है, हरीज बन जाता है, शैतान की नस्ल का औलाद वो बन जाता है, खुले आम बदमाशी करने लगता है। और जब लड़कियों की शादी करने लगता है तो उस वक्त वो मजलूम नजर आता है। तो ये आज सबसे मुश्किल जो मसला बन चुका है निकाह के मसले के अंदर, वो जहेज का मसला है। हजरात, ये धोखा दिया है किसी ने आपको, या गलत फहमी हो चुकी है कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था। बिल्कुल ये गलत बात है, किसी रिवायत में साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। अल्लाह तबारक ताला ने उसूल दिया है, ये कानून दिया है कि अगर तुम्हारी 1 से ज़ायद औलाद हो तो उनके साथ बराबर सराबर सलूक करो। अगर आपके 4 बच्चे हैं, एक के लिए 2000 का जोड़ा, एक के लिए 500 रुपए का जोड़ा, जाकर पूछो मुफ्ती से, आलिम से, कहेगा ये नाइंसाफी है, शरीयत के मिजाज के खिलाफ बात है। शरीयत ये कहती है अगर तुम्हारी औलाद 2-3 हैं तो उनके साथ बराबर सराबर सलूक करो, किसी को किसी पर फजीलत ना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां थी और 4 साहिबजादियों का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर जहेज देना हर निकाह के लिए मसनून होता और निकाह की जरूरत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साहिबजादियों के निकाह के अंदर जहेज देते। लेकिन हदीसें बतलाती हैं, रिवायतें चीख चीख कर कह रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कुछ जरूरियात जिंदगी दी। अब सवाल ये कि तीनों को छोड़कर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज क्यों दिया? अल्लाह तबारक ताला उनकी खबरों पर रहमतों को नाजिल फरमाए, जिन्होंने हदीस का दूध कर दिया और पानी का पानी कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्रे जर्रे को उम्मत पर आश्कारा कर दिया। साफ तौर पर रिवायतों के अंदर मौजूद है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू बचपने ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में चले गए थे। पैदा होने के कुछ सालों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में चले गए थे। वहां वो जवान हुए, वहां वो पनपे, शादी के लायक बने, तो पैगाम पहुंचा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अली, हम तुम्हें जहेज में कितना देंगे? जोड़े के लिए इतना देंगे और घोड़े के लिए देंगे, मकान के लिए देंगे, ये नहीं कहा। सबसे पहला जो बुनियादी सवाल है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों की सरदार अपने नूर नजर लख्ते जिगर के बारे में फरमाया, वो ये फरमाया, अली शादी की तो बात कर रहे हो, क्या मेहर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ रकम मौजूद है? आज शादी की बात चलती है, सबसे पहले लड़के वाले लड़की वालों से भीख का मुतालबा करते हैं कि तुम्हारे पास भीख देने की कितनी कैपेसिटी है, चिट्ठी देकर भेजो। 4 ब्रोकरों से, 4 मदावतों से चिट्ठी मंगाई जाती है। जिस भिखारी की भीख लंबी होती है, फहरिस्त तवील होती है, उसे कबूल किया जाता है। महफिल निकाह में काजी जब लड़का और लड़की का नाम पुर करता है, वकील गवाहों का नाम लिख लेता है, तो दफ्तर के अंदर ये खाना होता है जिसके अंदर मेहर लिखा हुआ रहता है। ये पूछता है काजी कि मेहर तुमने कितना बांधा है? ये लड़की का बाप बगले झांकता रहता है, ये लड़के का बाप, ये भिखारी ये बगले झांकता रहता है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में जिस चीज का मुतालबा सबसे पहले किया, आज उनका गुलाम और उनका मानने वाला आशिक महफिल निकाह में बैठकर सबसे आखिर में तय करता है। और वो भी जिस पर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, और जिसमें मजलूमों की आहें हैं, और जिसमें गरीबों की बद्दुआएं हैं, जिसमें मुआशरे का सिसकता खून है, आज उसका मुतालबा सबसे पहले किया जा रहा है। तो हजरात, आज सबसे आखिर में सबसे पहली चीज का मुतालबा हो रहा है, और सबसे घटिया चीज जिसका शरीयत मुतहरा में कोई वजूद नहीं है, उसका सबसे पहले मुतालबा किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूने नजर और लख्ते जिगर को जहेज नहीं दिया था, बल्कि ये फरमाया था, ऐ अली, मेरी बेटी से निकाह करने तो जा रहे हो, क्या निकाह के लिए तुम्हारे पास मेहर कितना है? आज कितने नौजवान हैं, कितने शादी करने वाले हैं जिन्होंने मेहर बांधे हुए, किसी के 30 साल का अरसा गुजर चुका, किसी के 25 साल का अरसा गुजर चुका, कोई आगे निकाह करने वाला है, किसी की निस्बत हो चुकी है, किसी का कल परसों में निकाह हुआ है। उनसे पूछो, क्या तुमने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला
عنہ کے نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے مہر پہلے ادا کر دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تم نے مہر ادا کر دیا تھا؟ سب سے پہلا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا کیا ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مہر شادی کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر کوئی مرد مہر طے کرے بغیر قاضی نکاح بھی پڑھا دیتا ہے، علماء نے فرمایا کہ اس مرد پر اس عورت کے حق میں مہر واجب ہو جاتا ہے. اب کتنا مہر دے؟ اب اس جیسی خوبصورت لڑکی اور اس جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا خاندان میں جو مہر چل رہا ہے 2786 یا 5500 جو چل رہا ہے، اسے جو ہے اسی کے قائم مقام بنا کر مرد کے لیے حکم لگا دیا جائے گا کہ تو اتنا مہر عورت کے حق میں دے دے. اور علماء نے یہ کان کھول کر سن لو، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو مرد جہیز کی بھیک لے لیتا ہے اور لڑکی کے ماں باپ کو تنگ کر کے اپنے مطالبات تو پورے کر لیتا ہے لیکن مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہے، کہتے ہیں کون سا بننا ہے جی، یہ محفل نکاح میں بڑھوتری کے لیے بڑی بڑی رقم لگا دو، 10,000 کوئی لکھا دیتا ہے، کوئی 20,000 لکھا دیتا ہے، کوئی 10 تولے سونا لکھا دیتا ہے تاکہ مجلس کے اندر عظمت ہو. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو نکاح کرنے والا مرد اگر مہر اس وجہ سے باندھتا ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں تو مہر تو باندھ دیتا ہوں لیکن مہر ادا نہیں کروں گا، علماء نے فرمایا کہ اس کا ملاقات کرنا، اس کا مباشرت کرنا، اس کے نکاح کے تعلقات کو تکمیل کرنا یہ زنا کے قائم مقام ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد نسل حرامی ہے. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اس اہم مسئلے کو شادی کے محفل کے اندر آ کر طے کرتے ہیں. اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، اور سن لو کہ جہیز کیا دیا تھا اور کس کے پیسوں میں دیا تھا. فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی مہر دینے کے لیے نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلہاڑا تمہارے پاس تھا اور ایک زرہ تھی تو وہ دونوں چیزیں لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلہاڑا تمہیں جنگلوں سے درخت کاٹنے کے کام آئے گا اور یہ لکڑی فروخت کرنے کے کام آئے گا، زندگی گزر بسر کرنے کے کام آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لڑکی کے لیے بادشاہوں کے رشتے آ سکتے تھے، بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آ سکتے تھے، بڑے بڑے محلے والوں کے رشتے آ سکتے تھے. کون بدنصیب ایسا ہوگا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو؟ کون بدنصیب ایسا ہوگا جو جنتوں کی عورتوں کی سردار سے شادی کرنا نہ چاہتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑے کے مالک علی کرم اللہ وجہہ کو ترجیح دی اس مالدار کے مقابلے میں، اس کروڑ پتی کے مقابلے میں، اس محل رکھنے والے کے مقابلے میں جس کے پاس دنیا تو ہو لیکن دین کی عظمت نہ ہو، جس کے پاس دولت تو ہو لیکن سنت کی عظمت نہ ہو، اور جس کے پاس مال تو ہو لیکن قرآن کی عظمت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تربیت پائے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، رگ رگ سے واقف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات صحابہ کرام کے تمام ناموں کے ساتھ عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور علی، لیکن جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کرم اللہ عنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو شرافت دی کہ غیروں کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا، بتوں کا چہرہ نہیں دیکھا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑ پتیوں کے مقابلے میں اس لکڑہارے کو کہ جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کیا کرتا ہے اپنی بیٹی کو دے دینا گوارا کر دیا. کیا آج کوئی مائی کا لال نبی کا غلام دینداری کو ترجیح دیتا ہے، سنتوں کو ترجیح دیتا ہے، نمازی کو ترجیح دیتا ہے، حفاظ اور علماء کو ترجیح دیتا ہے؟ کتنے ہیں وہ جو نبی کے غلام، جو نبی کے غلامی کرنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو بینک میں ملازمت کرنے والے کو، رشوت کھانے والے کو اور ادھر ادھر کی ٹوپی ڈالنے والے کو، حرام کی کمائی کمانے والے کو ترجیح دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت
मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हो गया तो वलीमा करने के लिए कुल्हाड़ा लेकर दूसरे दिन जंगल चले गए ताकि लकड़ियां काट कर लाए और बचे हुए पैसों में वलीमा कर सके। दूसरे दिन चले गए। ये तमाम हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सोचा कि ये नाज में पली हुई लड़की जाएगी, मसाला पीसेगी, हाथों से कपड़े धोएगी, कुएं से पानी को जो है सेंचेगी। रिवायत में आता है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसते पीसते, कुएं से पानी सींचते सींचते गड्ढे पड़ गए थे। गुलामों की फरमाइश की थी आका के दरबार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गुलाम उम्मत के लोगों के लिए है, मेरी बेटी के लिए नहीं, तेरी आसाइश तो जन्नत के लिए है। ये देखो इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है। आज नबी के मानने वाले, नबी की गुलाम कहलाने वाले और नबी के उम्मती का ये काम कर सकते हैं, तो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली महर के अंदर क्या दे सकते हो? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी कुल कायनात है, ये कुल्हाड़ा है, एक ज़िरा है। तो फरमाया ये कुल्हाड़ा तुम्हारे तिजारत पे कस्बे माश में काम आएगा और इस ज़िरा को फरोख्त कर डालो। तो चुनाचे उस ज़िरा की बोली लगाई गई। उस जमाने के अंदर 132 तोला जो चांदी आज की हो सकती है, उस कीमत के अंदर वो ज़िरा फरोख्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कीमत के अंदर 2 तकिए बनाए, एक चादर बनाई और एक मशकीज़ा बनाया। ये कुल जहेज था जो नबियों के नबी, सारे वलियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, सारी कायनात के सरदार, अपनी नूरे अज़र, लख्त जिगर, जन्नती औरतों की सरदार की औरत जो दुल्हन को दे रहे हैं कि 2 तकिए, एक चादर और एक मशकीज़ा दे रहे हैं। और हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि मेरी बेटी को तैयार कर दो और हजरत अली के हुजरे में पहुंचा दो। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। नौमान बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु के कई मकानात थे, तो नौमान बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लड़की के लिए मैं अपना मकान देने के लिए तैयार हूं। तो चुनाचे हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये जाती हैं, वो अरब में जो बालू रहती है उसमें जो नरम बालू रहती है, वो नरम बालू को जमीन के अंदर जो है बिछा देते हैं, उसके ऊपर चादर बिछा देते हैं, उसके ऊपर 2 तकिए रख देते हैं, जिसके अंदर इस्किर किस्म की घास, जो घास उस जमाने के अंदर उगा करती थी, वो घास भरी हुई रहती है और खजूर की छाल ये तकिए के अंदर भरी हुई रहती है। एक लकड़ी जिसके अंदर मशकीज़ा अटकाया गया है वही रहता है। ये वो जहेज है जिस जहेज की आड़ में आज गरीब औरतों का खून किया जा रहा है, लड़कियों के माँ बाप का खून किया जा रहा है। हकीकत में ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू का खुद महर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर के पैसों में अपने परवरिश करदा हजरत अली करमल्लाहु वजहू को खुद घर बसाया था। ये जहेज नहीं दिया था, ये धोखा दे दिया है किसी ने मुसलमानों को कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जहेज हासिल किया था। अगर आपको जहेज दिया जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लड़कियों को जहेज दे दे, और जितनी अज़वाज मुतहरात से आपने निकाह किया तमाम अज़वाज मुतहरात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज हासिल करते। दुनिया की लड़कियों में और दुनिया की औरतों में और दुनिया की दुल्हनों में अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम खाकर कहा जा सकता है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर कोई और औरत नहीं है, कोई और चहीती लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए नमूना देकर चले गए। हजरत अस्मा फरमाती हैं, सलमा फरमाती हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुल्हन का लिबास पहनाकर हारिस बिन नौमान के कमरे में पहुंचाए थे कि इससे बेहतर शादी मैंने मदीने मुनव्वरा में नहीं देखी, कि जिसके अंदर 2 तकिए दिए गए थे, एक मशकीज़ा दिया गया था, उसे सबसे बेहतर शादी करार दी जा रही है। हजरात आज उसका आड़ लेकर कोई मारुति कार मांग रहा है, कोई जो है होना मांग रहा है, कोई स्कूटर मांग रहा है, कोई जोड़े जहेज की रकम ले रहा है। ये गैर कौम से हमारे मुसलमानों के अंदर आ गया है। शरीयत में, इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, अल्लाह रसूल के उसूल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गैर कौम में बात कैसी आई? आने का सबब यह है कि उनके यहां लड़की की पैदाइश मनहूस है। उनके वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि जो लड़की
एक लड़के को जन्म नहीं देती है, वो शैतान की बेटी है। और दूसरा उसूल ये है कि जब वो लड़की की पैदाइश को मनहूस समझते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस नहूसत को जितना जल्द टाल सके टाल दिया जाए। तो इसी वजह से लड़की बालिग होने के आसपास, बालिग होने से पहले या बालिग होने के बाद ये शादी के बंधन में बांध देने हैं। आपने सुना होगा कि शादी का बंधन जब हो जाता है ये जन्मा जन्म का बंधन होता है, हमेशा हमेशा का बंधन होता है। मुसलमानों की तरह इसमें तलाक नहीं होता, खुला नहीं होता, जुदाई नहीं होती। अगरचे कि 1950 में मैरिज एक्ट के तहत हिंदू क़वानीन के अंदर तरमीम की गई और तलाक की इख्तियार हासिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज उनके अंदर जो रस्म राइज है, जो रिवाज राइज है, वो यही कि शादी एक मर्तबा का अटूट बंधन है जो हमेशा हमेशा के लिए है। ये अटूट बंधन क्यों है? ये जन्म जन्म के लिए बंधन क्यों है? तलाक क्यों नहीं, खुला क्यों नहीं? वजह उसकी ये है कि लड़की ब्याह होकर जब लड़के के यहाँ चली जाती है तो लड़की के माँ बाप ये समझते हैं कि नहुसत हमसे टल गई, तो जो नहुसत टल गई फिर उस नहुसत को दोबारा ये लेने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा कानून ये है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद लड़की के हक में हिंदू एक्ट के तहत, कानून के तहत कोई हिस्सा नहीं मिलता। तो चुनाचे लड़की को जब विदा करते हैं तो हमारे खानदान से कटकर दूसरे खानदान के अंदर मिल जा रही है, तो जितना हो सकता है उसी वक्त देकर ये रुखसत कर देते हैं। यही ये देना लेना आगे चलकर जहेज की रस्म बन गया और घोड़े की जो है रस्म बन गया, और यही चीज जो है पख्ता हो गई और वहां से मुंतकिल होकर मुसलमानों के अंदर आ गई। मुसलमान की बेटी जब किसी दूसरे के यहाँ ब्याह करके जाती है, वो एक माँ की भी बेटी रहती है, वो एक बाप की भी बेटी रहती है, वो एक भाई की बहन रहती है और एक खाला की भांजी रहती है। ये सब वही रिश्ते बाकी रहते हैं। ये जन्म जन्म का बंधन भी नहीं होता और लड़की को मीरास भी मिलती है, उनके यहाँ तो मीरास भी नहीं है। ये वो रस्म है जो हिंदू कानून के तहत जारी की गई थी। आज मुसलमान इसे निकाह का एक जरूरी हिस्सा समझ गया है, जो हिंदू कानून का एक हिस्सा है। इसका हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के जहेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गैर मुस्लिमों का रस्म और रिवाज है जो मुसलमान मुआशरे के अंदर दाखिल हो चुका है। इसी तरीके से वो जो काली पोत पहनाई जाती है, ये राजपूताना रस्म है। इस्लाम से, मुसलमानों से, कुरान से, हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सलमा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि जाकर इन्हें तैयार करके दुल्हन बनाकर बिठा दो, हुजरे के अंदर पहुंचा दो, वहां ये नहीं फरमाया कि इन्हें काली पोत पहनाकर बिठा दो। आज वहां काजी निकाह पढ़ाता है और यहाँ मंगलसूत्र और काली पोत्र जो है, काली पोत लड़की के गले में पहनाई जाती है, और मुसलमान ये समझता है कि जब तक ये ना पहनाया जाए निकाह मुकम्मल नहीं होता। आज मुश्किल तो ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक निकाह मसनूनी कहा जाता है। रुके के अंदर देखो तो वहां हदीस टाइटल में मिलेगी अन निकाह मिन सुन्नती, और निकाह मसनून का जो जुमला मिलेगा, बज़्म मुनाकाहत का जुमला मिलेगा, और वलीमे में देखो वलीमे मसनूना होगा, खुतबे में निकाह में देखो अन निकाह मिन सुन्नती का जुमला पढ़ा जाएगा। यहां से वहां तक सुन्नत का झंडा, नाम का झंडा बुलंद किया जा रहा है और काम वो किया जा रहा है जो शरीयत के मिजाज के खिलाफ काम है। सबसे पहले बुनियादी गलती रुके ही से शुरू कर देते हैं। रुके के अंदर अल्लाह का नाम लेकर, रसूलों का नाम लेकर, कुरान हदीस के अस्मा लेकर उसे पैरों तले रौंदा जाता है। और दूसरी बुनियादी गलती ये की जाती है कि लड़की का बाप अपने लड़की का नाम बड़े जली हुर्फों के अंदर लिख देता है और लड़के वालों को भिखारी बताकर लड़की के नाम के नीचे लड़के का नाम डालता है कि रोका छापने वाला भी यही डालता है कि मैंने लड़की के रोके छापे हैं और लड़के वालों को 500 200-400 दे दिए हैं। सबसे बुनियादी गलती यही से शुरू हो जाती है। लड़की की जात, लड़की की आवाज, लड़की के
जिस्म से लगकर बजने वाले पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज, ये तमाम की तमाम जो है पर्दे की चीजें हैं। औरत को औरत इसी वजह से कहा जाता है कि औरत सरापा औरत है, उसकी आवाज भी पर्दा है, उसके जिस्म का लगा हुआ कपड़ा भी पर्दा है, उसके जिस्म से बजने वाला जेवर भी पर्दा है, उसका नाम भी पर्दा है। कितने बेहया बाप हैं, कितने बेहया सरपरस्त हैं जो अपनी लड़की का नाम रुक़े के अंदर जाहिर करते हैं ताकि ये नौजवान उन नामों से लुत्फ अंदोज हो सके। किसी का नाम हसीना होता है, हसीना के माने खूबसूरती के होते हैं। ये नौजवान रुखा देखकर कह सके कि देखो तो सही कि इसके नाम में इतना हुस्न है तो इसके चेहरे में कितना हुस्न नहीं है। किसी का नाम शबीना होता है जिसके माने होते हैं रात में इस्तेमाल की जाने वाली चीज को शबीना कहते हैं। और अगर कोई मनचला नौजवान ये कहे कि ये रात में इस्तेमाल की जाने वाली चीज जब रुखे के अंदर इतनी खूबसूरत है, इसे रात में इस्तेमाल करके देखा जाए तो इसमें कितना लुत्फ आ सकता है। किसी का नाम शबाना है कि जिसके माने होते हैं रात में आने के। कोई मनचला ये देखकर कहे कि शब में आ जाना तो मजा दोहरा हो जाएगा, लुत्फ दोहरा हो जाएगा। कौन जुबानों पर पाबंदी लगा सकता है? लड़की का बाप बेहया बनकर अपनी लड़की का नाम जाहिर कर रहा है। लड़की की आवाज पर्दा, फला तख्ज़ान बिल कौल फयस्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मर्ज़ वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। कुरान शरीफ के 22वें पारे में अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को हिदायत दी कि अगर तुम्हें किसी गैर महरम से बात करने की नौबत आए तो बात को मचक मचक कर ना करो और कुचल कुचल कर ना करो ताकि सामने वाले के दिल के अंदर मर्ज पैदा ना हो जाए। हर वो चीज कि जिससे सामने वाले की दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए शरीयत मुतहरा उसे मना करती है। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अगर गैर महरम औरत वजू करती है और वजू में पानी बच जाता है, एक नौजवान जाकर उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर दूसरा पानी मौजूद है। हालांकि वजू अल्लाह की इबादत है और ये कर कर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन शरीयत दरवाजों को बंद करना चाहती है जिना के, मफासिद के, खराबियों के। अगर ये नौजवान जाकर वजू करेगा तो कहेगा कि मुझसे पहले जिस औरत ने वजू किया उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी हाथें कैसी होंगी, उसका खद कैसा होगा, अगर बात किया जाए तो कैसा होगा, सलाम किया जाए तो कैसा होगा। शरीयत ने कहा ना तू सोच, ना सलाम कर, ना बात कर, ना बदअमली कर, उससे पहले यह है कि जब तेरे पास दूसरा पानी वजू के लिए मौजूद है तो उस दूसरे पानी से वजू कर ले। शरीयत हर उस रास्ते को बंद कर देना चाहती है जिस रास्ते से मफासिद पैदा होते हैं। हत्ता के सारी जिंदगी में जो एक मर्तबा किया जाने वाला फरीजा हज बैतुल्लाह का शरीयत इजाजत नहीं देती कि गैर महरम के बगैर औरत हज को जा सके। भले से बगैर हज के मर जाए, काबे की जियारत के बगैर मर जाए, रोजे की जियारत के बगैर मर जाए, लेकिन बगैर महरम के हज को ना जाए। शरीयत कितनी इफ़्फ़त चाहती है, कितनी पाकदामनी चाहती है। बिस्मिल्लाह के बे के अंदर आज का मुसलमान अपनी लड़की का नाम, अपनी बहन का नाम जाहिर करके उसके अंदर जो है यहां पर मफासिद के दरवाजे को खोल रहा है। मलेश्वरम के अंदर एक लड़की का निकाह हुआ था जिन्होंने लव मैरिज किया था। इस शैतानियत के अंदर आगे बढ़कर उसने ये काम किया था कि लड़की ने खुद एक तरफ अपनी तस्वीर को शाया किया था और दूसरी तरफ लड़के की तस्वीर को शाया किया था। ना माँ का नाम मौजूद था, ना बाप का नाम मौजूद था। शायद उसके एक बाप नहीं होंगे, कई बाप होंगे कि लड़की तस्वीर शाया करके ये बतलाना चाहती थी कि इस तस्वीर वाले का निकाह इस तस्वीर वाले के साथ हो रहा है। आज भी कुछ बेहया एक दूसरों को मुबारकबादी देते हुए जो अखबारात के अंदर मुबारकबादी देते हैं, फलां को दामाद मुबारक, फलां को बहनवी मुबारक, तस्वीरें शाये करते हैं। किसी जगह लड़का और लड़की की तस्वीरें शाये करते हैं। ये अनिकाह मिन सुन्नती के साथ मजाक है। तुम्हें दुनिया का कानून माफ कर सकता है, दुनिया के जालिम बादशाह माफ कर सकते हैं, खुदा उस जालिम को माफ नहीं करेगा जो नबी की सुन्नतों के साथ मजाक करने वाला है। बिस्मिल्लाह की बे के अंदर जो है यहां पर जो है हराम पने का इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़की के नाम को जाहिर किया जा रहा है। फिर आगे लिखा जाता है
کہ فلاں لڑکی کا نکاح مسنون، یہ نکاح مسنون ہے یا نکاح شیطانی ہے کہ جس کے اندر VCR کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بھیک لی جا رہی ہے، جس کے اندر لڑکی کے ماں باپ کے نیندوں کو حرام کیا گیا ہے. جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ کہہ دو یہ نکاح شیطانی ہے، یہ نکاح دنیاوی ہے. رقیہ کا مضمون اس سراسر غلط ہوتا ہے کہ جس کے اندر نکاح مسنون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نکاح مسنون میں فلاں ابن فلاں سے جو ہے نکاح کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے جملہ لکھا ہوا رہتا ہے طعام ماں حضر میں آپ کی جو ہے حاضری کا آرزومند، یعنی وہ کھانا جو حاضر ہے اس میں آپ اگر شریک ہو جائیں تو ہم جو ہے خوش ہو جائیں گے، اس میں اس قسم کا جملہ ہوا رہتا ہے. طعام محضر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی اچانک گھر کے اندر پہنچ گیا، دال پکی ہوئی ہے، پاپڑ تلے ہوئے ہیں، تو میزبان کہتا ہے کہ معاف کرنا وقت بھی ہو چکا ہے، 2:30-3 بج چکے ہیں، جو کھانا حاضر ہے اسے کھا لیجئے. تو مہمان بھی خوشی خوشی کھا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں محضر جو حاضر ہے. یہ جو شادی میں بھیک کھلائی جاتی ہے، ہڈیاں سگائی جاتی ہیں، دال سے اونڈیلے جاتے ہیں، یہ طعام محضر نہیں، یہ طعام وہ ہے کہ جس کے لیے زمین کو گروی رکھا گیا. کیوں جھوٹ کہتے ہو طعام محضر؟ طعام وہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے ضمیر کو گروی رکھا گیا. یہ طعام وہ ہے جس کے لیے مکان کے کاغذات کو ماروڑی کے پاس جو ہے سود کے لیے رہن کو رکھا گیا. یہاں بھی جھوٹ کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر شعر لکھا جاتا ہے کہ اگر آئیں گے تو ہم نگاہ کو پھیلائیں گے، ہم جو ہے اپنی آرزوؤں کو پھیلا دیں گے، ہمیں مسرت ہوگی. وہاں کوئی نگاہ پھیلانے والا نہیں ملے گا، کوئی ملے گا ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، وہاں ملے گا ایک کھا رہا ہوگا اور دوسرا شیر پکڑے ہوئے ہوگا، اور دوسرا پوچھے گا کیا رے آفس کو جانے کا ٹائم ہوگا، تو پہلا بولے گا نہیں ابھی کھا کو بھاگ جاتا ہے تاکہ آدھا کھا کر بھاگ جائے. تمام کا تمام مضمون سراسر غلط رہتا ہے. اس مضمون کی جواب دہی اللہ کے دربار میں دینا ہے. یہ رہا رقیہ کا مضمون. اب چلے جائیے شادی کی محفل کے اندر. شادی کی محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چن چن کر کسے وکیل بنایا جاتا ہے، گواہ کسے بنایا جاتا ہے. کیا وکیل بنانے کے اصول شریعت نے بیان نہیں کیے؟ گواہ بنانے کے اصول کیا شریعت نے بیان نہیں کیے؟ کسی محاذ میں تم کہہ سکو کہ ہم شریعت کے اس مسئلے کے اندر آزاد ہیں؟ کون وکیل بنتا ہے، کون گواہ بنتا ہے؟ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنو والی آیت جو سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے، اس میں گواہوں کے شرائط بیان کیے گئے ہیں. داڑھی مڈا گواہ نہیں بن سکتا. نکاح شریعت کا مسئلہ ہے، نکاح سنت کا مسئلہ ہے، نکاح میاں بیوی کے بندھن کا مسئلہ ہے، نکاح اسلام کا ایک اہم ستون ہے. اس معاملے کے اندر تم کسے گواہ بنا رہے ہو، کسے وکیل بنا رہے ہو؟ شریعت یہ کہتی ہے فاسق گواہ نہیں ہو سکتا. فاسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کرنے والے کو. گناہ کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ بے نمازی فاسق ہے، داڑھی بنانے والا فاسق ہے، انگریزوں کی نقل کرنے والا فاسق ہے، یہودیوں کی نقل کرنے والا فاسق ہے، سنتوں کے نقش قدم پر نہ چلنے والا فاسق ہے، قرآن نہ پڑھنے والا فاسق ہے، فلم دیکھنے والا فاسق ہے، کلب چلانے والا فاسق ہے، حرام کاری کا دھندا کرنے والا فاسق ہے. انہیں لڑکی کا بھونی سے وکیل بنا ڈالو، انہیں لڑکے کا بھائی سے گواہ بنا ڈالو. کیا شریعت نے یہ کہا کہ جو رشتہ دار ہو اسے ہی وکیل گواہ بنایا جائے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ عدالت کے میزان پر جو گواہی کے اصول پر اترتا ہے اسے گواہ بناؤ اور اسے وکیل بناؤ. داڑھی منڈے اور فاسق گواہ نہیں ہو سکتے. اگر عدالت شرعی عدالت ہوگی اور نکاح طلاق کے اندر بدل جائے اور قاضی پوچھے کہ تمہارے گواہ کون، تو ہمارے للو بھائی کو پلو بھائی کو اگر حاضر کیا جائے تو شریعت یہ کہے گی کہ تم نے سب سے پہلا جرم یہ کیا کہ داڑھی منڈے کو گواہ بنا دیا، بے نمازی کو گواہ بنا دیا، جھوٹ بولنے والے کو گواہ دیا. یہ تمہاری گواہی معتبر نہیں، دوسری گواہی لاؤ. تو شریعت میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت شریفہ کے اندر اٹھا کر دیکھ لو. اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہ کے جو شرائط اور جو اصول لکھے ہیں اس کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب ہو گیا چلو کہ ہم نے فاسق کو گواہوں کے خانے کے اندر پر کر دیا، وکیل کو پر کر دیا. اب پر کر دینے
करने के बाद ये इजाजत लेने जाते हैं। अरे किसने कहा वकील और गवाह इजाजत लेना? अब जो लड़के का भाई रहता है वो लड़की का देवर होता है, और हदीस ये कहती है अलहम व अलमौत, देवर और मौत दोनों बराबर हैं। अब ये कमबख्त इजाजत लेने लड़कियों की महफिल में, औरतों की महफिल में इजाजत लेने के लिए जा रहा है। कभी किसी वक्त आलिम मौजूद रहता है, काजी मौजूद रहता है, पूछा कि गवाह लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए कौन जा सकते हैं और कौन नहीं जा सकते, लेकिन नहीं, लड़के का वो भाई और लड़के का वो रिश्तेदार जिसे शरीयत मुतहरा और हदीस पाक मौत ताबीर करती है, उसे भेजा जा रहा है। ऐ मौत, निकाह से पहले तू इस निकाह का गला घोट डाल, तो भेजा जा रहा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि वो जिसके अंदर दफ्तर में लिखाए गए वकील और गवाह जाए, बल्कि वो लड़की के महरम जिनका लड़की को देखना जायज है, वो जो है लड़की से इजाजत लेने के लिए जाते हैं। अब ये भरी महफिल के अंदर औरतों के जाते हैं, वहां लड़की वाले देख रहे हैं, औरतें देख रहे हैं, ये औरतों को देख रहा है, ये लड़की लिख नहीं पाती है तो ये नौशों का भाई हाथ पकड़कर दस्तखत करा रहा है, और फिर वहां पर एक और वो शरीयत का बंधन, वो शरीयत का जो है घाटी कि जिससे एक हराम हलाल के अंदर तब्दील होता है, अन्निकाह मिन सुन्नती के बोल से वहां वीसीआर वाले को बुलाया जाता है। वो कौन सी नेकी है जिसके अंदर हमने हरामी पना ना किया हो, लड़की के दस्तखत के वक्त भी तू वीसीआर को इस्तेमाल कर ले, यहां भी गुनाह को ले आए। हजरात, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। 3 शादी के फायदे अल्लाह ने बयान किए हैं। कुरान खोल कर पढ़ो, उलमा से सुनो, तफसीरें सुनो, तफसीरें पढ़ो। शादी के 3 फायदे हैं। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सुकून मिलता है, मवद्दत मिलती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये शादी के 3 फायदे अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर बयान फरमाए हैं। ये किसी एमपी का वादा नहीं है, ये किसी वोट के भिखारी का वादा नहीं कि वोट दे डालोगे तुम्हारे सड़कों का मसला हल हो जाएगा, तुम्हारे कॉलेजेस का मसला हल हो जाएगा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी का मसला हल हो जाएगा। वो अल्लाह जो बेनियाज है, वो अल्लाह जो जमीन और आसमान के खजाने का मालिक है, वो बगैर बंदों की तरफ से किसी ख्वाहिश रखे के ये कहता है कि शादी के 3 फायदे हैं। एक, सुकून मिलता है, दूसरे मोहब्बत मिलती है, तीसरे खुदा की रहमत नाजिल होती है। कौन सा घर ऐसा है कि आज इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे घर ऐसे भी हैं, हम इसका इनकार कर नहीं सकते, लेकिन अक्सर घराने ऐसे हैं कि जिसके घर के अंदर मियां बीवी का इख्तलाफ चल रहा है और अंडरस्टैंडिंग के अंदर जिंदगी गुजर रही है और सुकून का नाम व निशान नहीं। जब सुकून नहीं तो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं तो खुदावंद खुद्दूस की तरफ से भी रहमत नहीं। ये क्यों हो रहा है? शादी करने से पहले जो सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, शादी के बाद उसकी जिंदगी अजाब क्यों बन गई? अजाब इस वजह से बनी कि कुदरत ने इंतकाम ले लिया। तुमने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का मजाक उड़ाया, तुमने अली कर्रमल्लाहु वजहू के मेहर का मजाक उड़ाया, तुमने अन्निकाह मिन सुन्नती के बोल का मजाक उड़ाया, और तुमने सूरह निसा की आयतों का मजाक उड़ाया, और तुमने लन तनालुल बिर्रा की आयतों का मजाक उड़ाया, और तुमने सूरह अहज़ाब की आयतों का मजाक उड़ाया। तो शरीयत ने इंतकाम ले लिया। शादी से जो चीज मवद्दत हासिल होनी चाहिए थी, सुकून हासिल होना चाहिए था, खुदा की रहमत हासिल होनी चाहिए थी, आज मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता है। 2 बच्चे पैदा करने के बाद नसबंदी की सोचता है या औरत को ऑपरेशन कराने का सोचता है। वो औलाद जो माँ बाप के लिए रहमत का जरिया थी, वो औलाद जो माँ बाप के लिए बूढ़ापन में सहारे का जरिया थी, इस नस्ल को खत्म करने की सोचता है। सोचने का जरिया सबब इसी वजह से हुआ कि इसने शादी को मुश्किल बना दिया, शादी का मजाक उड़ाया। कहते हैं लोग यार जिंदगी में शादी बार बार नहीं होती, एक मर्तबा होती है। मौज किया जाए, सुबह में एक जोड़ा पहना जाए, दोपहर में एक दावत उड़ाई जाए, शाम में ऊटी को जाया जाए, कश्मीर को जाया जाए। मैं ये कहता हूं तेरा बाप भी बार बार नहीं मरता, जिंदगी में एक बार तेरे बाप मरता है, तेरी मां मरती है, तेरे बाप
बाप के इंतकाल के वक्त कोई बाजे का इस्तेमाल करे, कोई VCR का इस्तेमाल करे, कोई कैमरे का इस्तेमाल करे और कोई ढोल ताशे का इस्तेमाल करे और उस वक्त कोई जो है खाने पीने का इस्तेमाल करे, बिरयानी बांटे कि चलो फला साहिब के बाप का इंतकाल हो चुका, क्यों यहां पर तो जो है ढोल ताशे इस्तेमाल नहीं किए जाते, VCR इस्तेमाल किए, भी जिंदगी में एक मर्तबा हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि हमेशा के लिए चला जा रहा है। यहां तो ये कि लड़की जाती है तो तीसरे दिन फिर मैके आ जाती है, फिर 10वें दिन आ जाती है, फिर 5वीं जुम्मागी को आ जाती है, फिर वलीमे को आ जाती है, लेकिन एक मर्तबा जो रुखसत किया बाप को हमेशा के लिए चला गया, एक मर्तबा जो रुखसत किया मां को हमेशा के लिए चली गई। क्यों ढोल ताशे पीटे नहीं जाते? इसी वजह से शरीयत ने इंतकाम ले लिया, कुदरत ने इंतकाम ले लिया। देखो हर चीज को मैं माफ कर सकता हूं, तुमने दाढ़ी निकाली, तुमने नमाजों को छोड़ा, तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ा, तुमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ा, हम जगह जगह वक्तन फवक्तन हर जगह लिहाज करते हुए माफ करते रहे, लेकिन तुमने मेरे लाडिले, मेरे हबीब, मेरे चहीते नबियों के सरदार की बेटी की शादी का मजाक उड़ाया और वहां पर तुमने खुराफात की तो कुदरत इंतकाम लिया। यही वजह है कि शादी के ये बड़े बुजुर्गों ने जो 5 जुम्मागियां बनाए हैं, यही सोचकर बनाए हैं कि आज का भिखारी सिर्फ 5 जुम्मागियां तक खुश रहता है, उसके बाद इसका फख्र फाखा शुरू हो जाता है। ये भीख में लिए हुए स्कूटर और कार में पेट्रोल डालने की हैसियत नहीं है और ये जो है दूसरे तीसरे महीने के अंदर फरोख्तगी की सोचता है, ये स्कूटर निकल जाए और ये मेरी बीवी का जो जहेज है वो कम मोलों के अंदर फरोख्त हो जाए। ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक ताला के अजाब को दावत देने वाली चीज है। हजरात, इस सिलसिले में हमारी एक गुजारिश है कि हमारे सेक्रेटरी मोहतरम ने 2 जुमा पहले आप हजरात से मशवरा तलब किया था निकाह के मामले में। अगर दुनिया का कोई मशवरा तलब किया जाता कि आपको चावल कैसे होनी चाहिए और आपको जो है मकानत कैसे होनी चाहिए, बैतुल माल से इंतजाम किया जाएगा, शायद ये सारा मेहराब एप्लीकेशन और दरखास्तों से भर जाता कि हमें बासमती का चावल चाहिए, हमें जीरक सामा चावल चाहिए, हमें मोल्डिंग वाला मकान चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि कुछ दर्दमंद नौजवानों के अलावा ये जिनकी लड़कियां हैं और जिनकी बहनें हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कोई हमदर्दी का जो है ख्याल जाहिर नहीं किया है अब तक। मैं ये कहता हूं ये मौका चल रहा है, ये सीजन चल रहा है, फायदा उठाएं और इन जिम्मेदारों से दरखास्त करें कि खुराफात तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने दफ्तर निकाह को ऐसी जगह पर ना भेजें कि जहां मस्जिद से बाहर निकाह किया जाता हो, और मस्जिद में तो निकाह किया जाता हो लेकिन VCR का इस्तेमाल किया जा रहा हो शादी महल के अंदर। कम से कम ये 2 खराबियों पर पाबंदी हासिल कर ले, इंशाअल्लाह आगे चलकर अल्लाह सहूलियात पैदा कर देंगे। आज हम मजलूमों के काम आएंगे, आज हम गरीबों के काम आएंगे, ये गरीब हमें जन्नत में जाने का जरिया और वसीला बन जाएंगे। तमाम महल्ले वालों से, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि हर आदमी कुछ ना कुछ करे, जितना हो सकता है करे। रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने आग को भड़का दिया और वो आग इतनी ऊपर थी कि बुलंदी पर जाने वाले परिंदे जल जलकर उस आग के अंदर गिर रहे थे, तो हर एक की कोशिश थी कि उस आग को बुझाया जाए। जो नेक मोमिन थे बाल्टियों में पानी लेकर बुझा रहे थे, जो परिंदे थे अपने चोंच में लाकर पानी डाल रहे थे। हालांकि परिंदे के चोंच के पानी से वो आग बुझने वाली नहीं थी। यहां तक रिवायत में आता है ये गिरगट वो भी अपने मुंह में पानी ले आया और फूंक कर चला गया। ये यानी आदमी जो कर सकता है वो कर डाले और उसके अंदर तासीर देना ये अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है। अबाबील एक इतना छोटा सा परिंदा है कि आप उसे अपने पंजे से मड़ोरे तो मर जाए, और उसके हाथ में जो कंकरी थी जिससे अथाबे फील नेस्त नाबूद हुए, इतनी छोटी कंकरी कि छोटा बच्चा अपने उंगलियों से मसल डाले, लेकिन कुदरत जब इंतकाम पर आई उस अबाबील को काम में लाया और वो कंकरियां जो उंगलियों से मसली जाती थी हाथी वालों को हिला कर डाला। कुरान शरीफ का 30वां पारा सूरह फील पढ़कर देख लो। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक ताला ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया है। कहने का मतलब ये है आदमी उतना ही कर सकता है जितना वो कर सकता है। आज हम इतना कर सकते हैं, कर गुजरे, आपके लिए वक्त है, आपके लिए हालात साजगार हैं, वरना याद रखो कि सुन्नत के लिए मदद नहीं करेंगे, कल कोई ऐसा जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत हो जाएगा जिसकी वजह से हालात बिगड़ जाएंगे, लड़कियां उठना मुश्किल हो जाएंगे और
مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور بھی بہت ساری نکاح کی تفصیلات ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سنت